پیش کیا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم، عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے چلا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ کے والد محترم ہیں، اور وہ والد ہیں آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں جن سے ولایت کا سلسلہ چلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ مگر دوسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بنیاد ہیں، حضرت عمر فاروق دیوار ہیں، حضرت عثمان غنی چھت ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ وہ دروازہ ہے۔ یہاں تک یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بنیاد نہ ہوتی، جنہوں نے اپنے سارے مال کو نچھاور کر دیا اسلام کے اوپر، پھر حضرت عمر فاروق دیوار بن کے کھڑے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی نے جتنا خرچ کیا ہے وہ کسی صحابی نے نہیں کیا ہے، آپ کی ذات سے بہت فیض ہوا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے شجاعت کا سلسلہ اور آپ سے خاندان کا سلسلہ چلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے لڑکا ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے صحابی بھی ہیں، اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے سسر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے سسر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار دو عالم کے داماد ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی داماد ہے، مگر عثمان غنی ذی النورین یعنی حضرت ام کلثوم کے بعد حضرت رقیہ کو بھی آپ کے نکاح میں دیا تھا، تو آپ کو دو آپ نے دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خاندانی سجرہ ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو بکر سے سلسلہ چلا بیعت کا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے چلا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جلال تھا، حضرت عثمان غنی کے اندر حیا تھی، اس لیے آپ نے سلسلہ وحیث آپ نے بند کر دیا۔ ان دونوں سے سلسلہ چلا ہے، جہاں سے قادریہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، اور جو کچھ بھی ہے، اور نقشبندیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے، مگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجمع البحرین ہے، دونوں طرف سے خلافت آپ کو نقشبندیہ کی بھی ہے، قادریہ چشتیہ صاحب یہ سب کی خلافت آپ کو عطا ہوئی ہے، کیونکہ اولاد رسول ہیں آپ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کون ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ میں پیدائش ہے، یہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے والد کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب تک آپ تشریف نہ لائے، حضرت علی نے آنکھ کھول کے کسی کو نہیں دیکھا تھا، سب سے پہلے سرکار کی زیارت کی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مقام ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے اور آج جیسی عورتوں کا طرح کبھی حیض نہ ہو، ہمیشہ آپ نماز پڑھتی رہے، ہمیشہ آپ روزہ بھی رکھ سکتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یعنی دونوں کی پیدائش میں کبھی آپ ناپاک نہیں ہوئی تھی۔ میرے محترم بزرگ، یہ مقام ہے آپ کا۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین میں 6 مہینے کی چھٹائی بڑھائی ہے، 1 سال 2 سال کی چھٹائی بڑھائی نہیں ہے، بلکہ 6 مہینے کی چھٹائی بڑھی ہے۔ حضرت امام محسن آپ کے تیسرے لڑکے حضرت امام محسن بھی پیدا ہوئے تھے، آپ کا بچہ
बचपने में इंतकाल हो गया था। ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहों से और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपके बतन पाक से ये औलाद लड़कों में है। लड़की में ज़ैनब भी है, वो और जितनी लोग हैं 4 लड़कियां आपसे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त का तकाजा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको एक तो आपको आप भी शहादत का मकाम हासिल किया है। कौन? हज़रत इमाम हसन ने। वो आपने छुपी हुई यानी आपको जहर दे के आपको शहादत का जाम आपने पिया है। और हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया है। 72 नफूस कुदसिया को लेकर आप शहीद हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप जानते हैं कि कितने नन्हे नन्हे बच्चे भी उसमें शामिल थे और यही हक व बातिल का जंग हो रहा था, बैत का झगड़ा था। जो आज बैत होते हैं लोग, यही बैत की शान हक व बातिल के हज़रत इमाम अली मकाम ने, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में हक बातिल का फ़र्क बता दे के दिखा दिया। इसलिए आपको जानना चाहिए कि पीर कामिल के पास आप बैत हो, जिनके अंदर 4 चीज़ होनी चाहिए। या तो आलिम का होना ज़रूरी है, या इतने पढ़े लिखे हो कि वो आप अपने किताबों से अपने मुरीदों को और अपने आप को हराम हलाल की तमीज़ और मसाइल बता सके। ये पीर कामिल की पहचान है पहली। और दूसरी, जिसने यानी जो सिलसिले में इजाज़त दिया है वो सिलसिले की इजाज़त उनके पास हो। और तीसरे में वो जब तक तीसरे में वो यानी ऐसा हो कि वो या अपने आप को सदाकत हो, बोलने वाला हो, जब तक वो सच्चा नहीं बोलता हो। और उसके बाद वो बाशरे का होना ज़रूरी है। आप जब तक ये मकाम हासिल ना हो, किसी पीर से जब तक ऐसी बातें ना देखें, उसके हाथ पर हाथ नहीं दें, नहीं तो वो पीर कामिल की पहचान मैंने आपको बता दी है। इसलिए गौसे आज़म फरमाते हैं, ज़माने में कोई पीर समझ में न आए तो आप अब मुझे सोच लो कि मैं गौसे आज़म का मुरीद हूँ, तो वो जब तक पीर कामिल नहीं मिलेगा वो हमारा ही मुरीद कहलाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये किनका उर्स है? ये हज़रत साबिर पाक का चिश्तिया साबिरिया, चिश्तिया की 2 शाख, चिश्तिया निज़ामिया हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से और चिश्तिया साबिरिया हज़रत साबिर पाक से चला है। उन्हीं से अब्दुल कुद्दूस गंगोही में पहुंचा है। उन्हीं से सिलसिला चलता हुआ हज़रत नन्हे मियाँ साबरी में जो हबीब पेंटर के पीरो मुर्शिद थे अलीगढ़ में पहुंचा है। उन्हीं से फसीहुर रहमान और फसीहुल जमा और कमरुर रहमान से जरिए होता हुआ हज़रत अब्दुल हकीम साहिब और फिर काले बाबा तक पहुंचा। उनके खलीफा ये हैं, उनके भांजे भी ये हैं, उनके दामाद भी ये हैं, उनके मुरीद भी ये हैं। सब सिलसिला इनके पास है। और हज़रत अफसर अली, उनके अफसर अली मियाँ जो थे फन्ने खां, उनसे मुझे भी इजाज़त है इस सिलसिले की। इसलिए चिश्तिया साबरिया में हम दोनों पीर भाई हैं, इसलिए हम आया करते हैं। और ये फैज़ान आपके सामने सुनाकर फैज़ान आपको लुटाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको चाहिए कि 5 वक्ता नमाज पढ़ें, ज़ाहिर भी और बातिन भी। ज़ाहिरी नमाज आप पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज व ज़कात कर रहे हैं, ये ज़ाहिरी इबादत है। मगर बातिनी इबादत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से क़ल्बों को इत्मीनान बख्शो। इसलिए कि लताइफ़ सित्ता के 6 मकाम है, यानी नफ्स है, रूह है, सिर है, खफी है, इख्फा है, कल्ब है। ये सबको जानना चाहिए और इससे मकाम को तय करना चाहिए। नफ़ी इस्बात कैसे करेंगे, इस्बात कैसे करेंगे, इसमें ज़ात कैसे करेंगे, पासन फास कैसे करेंगे, ये बुजुर्गों से अपने पीरों से हासिल करना चाहिए। जब ही तुम कामयाब और कामरा होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फज्र की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी उसके चेहरे से नूर को ख़त्म कर दिया जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़ुहर की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी उसकी रोज़ी से बरकत को ख़त्म कर दी जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने असर की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी यानी उसके बदन से ताकत को ख़त्म कर दी जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और जिसने
मगरिब की नमाज कज़ा कर दी, उसके औलाद से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फिर उसके बाद जिसने इशा की नमाज जानबूझकर कज़ा कर दी, उसके नींद से राहत को ख़त्म कर दी जाती है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ नक्शे कदम पर चलो, हज़रत इमाम रब्बानी के नक्शे कदम पर चलो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के किताबों के उसमें जो लिखा है उनके नक्शे कदम पर चलो, मुफ्ती आज़म हिंद के नक्शे कदम पर चले, जब ही हम कामयाब और कामराह होंगे। आखिरी बात आपको कह के गुजर जाना चाहता हूँ, वक्त का तकाजा भी है, इसलिए सलाम बाद में पढ़ेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप और हम यहाँ हाजिर हुए हैं फैज़ हासिल करने के लिए। लंगर खाएंगे ये रूहानियत पैदा होगी, सूखी रोटी भी मिल जाए खानकाह की तो रूहानियत पैदा होगी। इसलिए ये समझ के नहीं कि यहाँ क्या खाएंगे, तबरुकन खाएं ताकि आपकी रूह पाकीज़ा हो, तज़किया नफ्स हो और कामयाबी हो। इसलिए हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। हुकूकुल्लाह अल्लाह के जो फ़र्ज़ वाजिबात है उसका, और हुकूकुल इबाद जो अपने माँ बाप और अपने पड़ोसी का हक उसको भी अदा करें, जब ही कामयाब और कामराह हो सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।